Hey lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है and the name of that particular series of lecture is drugs which are useful in the treatment of hypertension. So हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ मेडिकेशन देखा था and that is known as directly acting vasodilators. So in our today's video lecture, we are going to see two important classes of our antihypertensive agent. The very first one is known as calcium channel blocker and the second one is known as a diuretic agent. So in this video lecture, we are going to see the mechanism of action of our calcium channel blocker as well as of our diuretic agent. So let us start with the concept of calcium channel blocker. So as you can see on your screen कि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, the very basic thing that we need to understand is कि we know that the influx of calcium is very important for the contraction. Now ये जो कैल्शियम चैनल अगर हमने ब्लॉक कर दिया, so can I say कि जो कैल्शियम जो सेल के अंदर जाता था वो अब जा नहीं पाएगा एंड जो हमारा सेल है वो स्टिम्युलेट ही नहीं हो पाएगा. ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये कौन से टाइप के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं? सो द आंसर इज दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे ब्लॉक एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स. नाउ लेट अस सी कि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो हमारे आर्टेरियोल्स पे कैसे काम करते हैं एंड हमारे ह्यूमन हार्ट पे कैसे काम करते हैं. सो हियर इज अवर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड जब भी ये आर्टेरियोल्स में इट विल डिक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, उससे क्या होगा कि जो हमारा आर्टेरियोल्स है वो अभी स्टिम्युलेट नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स आर्टेरियोल्स अभी कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे. सो इट विल शो द अपोजिट इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड दैट इज अवर डायलेटेशन. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम in the arterioles, our arterioles will dilate, and when our arterioles will dilate, there will be decrease in our total peripheral resistance. And we know from our basic introductory video lecture कि जब भी कोई भी ड्रग अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है, so there will be decrease in our diastolic blood pressure. So this was our effect of calcium channel blocker on our arterioles. Now let us see the effect of our calcium channel blocker on our human heart. So जब हम मायोकार्डियम में कैल्शियम के इन्फ्लक्स को अगर कम करते हैं तो वहां पे क्या इफेक्ट होगा? सो डेफिनेटली जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी. अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम हो रही है सो देयर विल बी डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है there will be decrease in our cardiac output. And from our basic knowledge we know कि कोई भी ड्रग अगर cardiac output को decrease कर रही है so it is going to decrease our systolic blood pressure. So these are the two important mechanism of our calcium channel blocker. One is on our arterioles and the second one is on our human heart. Now let us see what is the classification of our calcium channel blockers. So this calcium channel blocker is subclassified into two important categories. The very first one is known as dihydropyridine calcium channel blocker and we have non-dihydropyridine calcium channel blocker. Now in the classification of dihydropyridine calcium channel blocker, we need to remember few important drugs. So the very first drug which is coming in this class is our amlodipine. Second one is nicardipine, the third one is nifedipine and the fourth one is felodipine. So all these drugs it is belonging to our dihydropyridine calcium channel blocker. Coming to our second important subclass, that is of non-dihydropyridine calcium channel blocker. So वहाँ पे we need to remember the names of two important drugs. The very first one is known as verapamil and the second one is known as diltiazem. Now ये जो calcium channel blockers होते हैं, let us see the effect of our calcium channel blocker
on two important regions. The very first region is our blood vessel and the second one is our heart rate. So here we have taken three important drugs. The very first one is our verapamil, then we have diltiazem, and we have a class of our calcium channel blocker that is known as dihydropyridine calcium channel blocker. अब ये जो तीनों के तीनों होते हैं, वी नो कि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन अवर ब्लड वेसल एंड मेनली ब्लड वेसल पे कहाँ पे ये काम करते हैं? सो द आंसर इज दे वर्क ऑन अवर आर्टेरियोल्स. सो जब भी ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे आर्टेरियोल्स पे काम करेंगे, आई टोल्ड यू कि इट विल प्रोड्यूस अ डायलेटेटरी इफेक्ट. उसके वजह से देयर विल बी डिक्रीज इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड जैसे ही हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज इन अवर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो जितने भी हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे आर्टेरियोल्स पे काम करेंगे ही करेंगे. नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ अवर कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑन अवर ह्यूमन हार्ट. नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट the effect of any drug on human heart rate, we need to understand two important phenomena. The very first one is a direct effect on our heart rate and the second one is indirect effect on our heart rate. Now ये जो direct effect क्या होता है? Direct effect का मतलब होता है जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं, that is known as direct effect on our heart rate, and indirectly how it is monitoring or how it is altering our heart rate. Now ये जो indirect होता है, what is that? Now we know कि अगर कोई भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है. Now our human body as a mechanism ये क्या करती है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का ट्राई करती है या फिर ये ब्लड प्रेशर को फिर से अपने नॉर्मल रेंज पे लाने का ट्राई करती है. सो उसके लिए अवर ह्यूमन बॉडी एक्टिवेट्स इट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड फिर से जो ह्यूमन की हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है. नाउ लेट अस सी कि ये टेबल के फॉर्मेट में हाउ इट इज अफेक्टिंग अवर ब्लड वेसल एज वेल एज कि ये ड्रग्स हार्ट रेट पे कैसे कैसे इफेक्ट लाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि ये जो सारे के सारे जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो तो ब्लड वेसल पे काम करके वेसोडाइलेटेटरी इफेक्ट शो करेंगे एंड देयर विल बी रिडक्शन इन अवर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट रेट, सो हार्ट रेट में आई टोल्ड यू कि वी हैव डायरेक्ट इफेक्ट एंड वी हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट. नाउ ये जो verapamil होता है it is very potently working on our human heart and हमें ये पता है कि अगर कोई भी ड्रग हार्ट पे अगर कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही है, कैन आई से कि जो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाएगा. उसके वजह से कैन आई से देयर विल बी अ डिक्रीज इन द हार्ट रेट एज वेल एज देयर विल बी डिक्रीज इन अवर स्ट्रोक वॉल्यूम. बट यहाँ पे हम सिर्फ हार्ट रेट की बात कर रहे हैं. सो जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारे हार्ट पे काम करेगा इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस अवर हार्ट रेट. सो ये जो ड्रग होती है दैट इज verapamil, इट इज हैविंग अ वेरी पोटेंट एक्शन ऑन अवर ह्यूमन हार्ट एंड उसके वजह से जो हमारी हार्ट रेट होती है वो बहुत सिवियरली ड्रॉप होती है. सो इसीलिए यहाँ पे 3 डाउन एरोज हमने यहाँ पे शो किए हैं. सो दैट वाज अबाउट द verapamil. Now let us see कि diltiazem क्या करता है. Now diltiazem is also having a very potent effect on our human heart. But as compared to verapamil, ये जो diltiazem होता है वो हार्ट रेट को इतना ज्यादा कम नहीं करता है. सो इसीलिए हार्ट रेट कम यहाँ पे होती जरूर है बट एज कंपेयर टू verapamil कम होती है. इसीलिए यहाँ पे 2 डाउनवर्ड एरोज शो किए गए हैं. अब ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं दैट इज डाइहाइड्रोपिरिडिन, ये हार्ट पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते हैं. इसीलिए यहाँ पे एक डैश है दैट इज दिस डाइहाइड्रोपिरिडिन इज नॉट हैविंग द इफेक्ट ऑन अवर ह्यूमन हार्ट एंड कोई भी ड्रग अगर ह्यूमन हार्ट पे अफेक्ट नहीं करती है सो डेफिनेटली इट विल नॉट अल्टर अवर हार्ट रेट. सो यहाँ पे ये जो डाइहाइड्रोपिरिडिन्स है
इसका जो डायरेक्ट एक्शन है वो कुछ भी नहीं है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द इनडायरेक्ट इफेक्ट. सो इनडायरेक्ट इफेक्ट तीनों के तीनों शो करेंगे, यानी कि यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये तीनों के तीनों ड्रग शो कर रहे हैं. सो इन द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बाय अवर ह्यूमन बॉडी देयर विल बी इंक्रीज इन अवर हार्ट रेट. सो यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट में तीनों के तीनों इसमें देयर इज इंक्रीज इन अवर हार्ट रेट. नाउ जो हार्ट रेट पे जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द समेशन ऑफ अवर डायरेक्ट इफेक्ट as well as of our indirect effect. Now वीरापामिल के साथ देखते हैं. वीरापामिल में डायरेक्ट इफेक्ट में 3 एरोज डाउनवर्ड्स है एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट में 1 एरो अपवर्ड है. सो जो नेट रिजल्ट होगा देयर विल बी डिक्रीज इन अवर हार्ट रेट एंड हियर इट इज शोन बाय 2 एरोज, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड एरो है एंड ये जो अपवर्ड एरो है वो एक दूसरे के साथ नलिफाई हो जाएंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 डाउनवर्ड एरो. Now deltaism में अगेन डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट को जब हम प्लस करेंगे सो ये जो डाउनवर्ड एरो एक है एंड ये जो अपवर्ड एरो एक है ये आपस में कैंसिल कर देंगे एंड जो नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी अगेन डिक्रीज इन दी हार्ट रेट. बट एज कंपेयर टू वीरापामिल यहाँ पे हार्ट रेट कम डिक्रीज होगी. नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायहाइड्रोपिरिडिन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट कुछ भी नहीं है बट इनडायरेक्ट इफेक्ट में देयर इज 1 अपवर्ड एरो. सो जब हम डायरेक्ट इफेक्ट को एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट को कंबाइन करेंगे देयर विल बी इंक्रीज इन अवर हार्ट रेट. सो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हमारे डायहाइड्रोपिरिडिन्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डायहाइड्रोपिरिडिन है ये ब्रेन में नहीं जा सकती है. यहाँ पे पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मतलब होता है कि हार्ट के अलावा बाकी जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन में भी ये काम कर सकती है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली दैट जो डायहाइड्रोपिरिडिन्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. व्हाई? बिकॉज ये हार्ट पे एज अ डायरेक्ट इफेक्ट कुछ भी शो नहीं करती है. इट मेन इफेक्ट इज ऑन द ब्लड वेसल एंड दैट इज अवर आर्टेरियोल्स. Now moving on to important side effects of our calcium channel blocker. The very first side effect is of the headache. Second one is of constipation. And this calcium channel blockers, they can also lead to gum hypertrophy. Now what is this gum hypertrophy? As you can see in this image, यहाँ पे जो gums है वो swell हो जाते हैं. So we can say the overgrowth of our gums around the teeth, that is known as gum hypertrophy. So gum hypertrophy is a side effect of our calcium channel blocker. Now कुछ ये calcium channel blocker में we have long acting calcium channel blocker and we have short acting calcium channel blocker. So long acting में we need to remember the examples of 2 important drugs. The very first one is nicardipine and the second one is amlodipine. Now similarly जो short acting drugs होते हैं we have 2 important agents. The very first one is nifedipine and the second one is clevidipine. Now ये जो nimodipine होता है it is also known as cerebroselective calcium channel blocker. Now why this nimodipine is known as cerebroselective calcium channel blocker is कि ये जो ड्रग होती है वो मेनली जो ब्रेन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेरिब्रो सिलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. नाउ ये जो निमोडिपिन होता है इट इज यूजफुल इन द इंडिकेशन दैट इज नोन एज सब एरेकनॉइड हेमरेज. सो निमोडिपिन इज यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ सब एरेकनॉइड हेमरेज. नाउ ये तो हो गया हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला क्लास ऑफ एजेंट. Now moving on to our next important class of medication that is known as diuretic agent. Now the very first question is कि diuretics होता क्या है? So diuretics are those drugs which promotes the excretion of sodium and water in the urine. So if there is loss of only water in the urine then it is known as aquuresis. एंड ये जो हमारे डायूरेटिक एजेंट होते हैं
they are mainly working on our kidneys. Now let us see the classification of our diuretic agent. So we have mainly 5 important classification of our diuretic agent. The very first one is known as carbonic anhydrase inhibitor. Then we have loop diuretics. Then we have thiazide diuretic agent. Then we have a potassium sparing diuretic agent. And finally we have osmotic diuretic agent. Now इनमें से we are going to understand the mechanism of action of our thiazide diuretic agent. But before moving on to the mechanism of action of our thiazide diuretic agent, we need to understand कि ये जो diuretic agent होते हैं, as I told you कि ये किडनी पे काम करते हैं. Now we all know कि the basic functional and structural unit of our kidney is the nephron. So ये जितने भी drugs होते हैं वो different regions of nephron पे काम करते हैं and ultimately diuretic का एक ही aim होता है कि sodium and water को body से बाहर निकालना. Now जब ये sodium and water body से बाहर निकल जाएंगे, definitely there will be reduction in the blood volume and जैसे ही blood volume कम होगा, so can I say कि जो blood volume, जो volume of blood हमारे ह्यूमन हार्ट में जाता था वो कम हो जाएगा. सो अल्टीमेटली हार्ट इज हैविंग अ लेस स्ट्रेस, या फिर जो हार्ट के ऊपर जो प्रीलोड है वो कम हो जाएगा. अगर प्रीलोड अगर कम हो गया है सो डेफिनेटली अब जो हमारे मायोकार्डियम के मसल्स होते हैं वो कम स्ट्रेच होंगे एंड अकॉर्डिंग टू अवर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जितना कम स्ट्रेच होगा उतना ही कम वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा. अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एंड विद द रिडक्शन ऑफ अवर कार्डियक आउटपुट जो पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा. सो दैट इज द शॉर्ट में द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अवर डायूरेटिक एजेंट. नाउ लेट अस सी कि ये जो थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट होते हैं ये कैसे काम करते हैं. So as you can see on your screen, here is the mechanism of action of our thiazide diuretic agent. Now ये जो thiazide diuretic agent होते हैं ये कौन से नेफ्रॉन के रीजन में काम करते हैं? So the answer is it is working on our distal convoluted tubule. So here this space is known as the luminal space and यहाँ पे can you see this important sympater system? This sympater system is known as sodium chloride sympater. Now जब भी यहाँ से सोडियम पास होता है as you can see कि ये जो सोडियम क्लोराइड sympater system को thiazide diuretic agent ने ब्लॉक कर दिया है. So do you think कि ये जो सोडियम है that can enter through this particular sympater system? The answer is no. Why? बिकॉज सिंपली ये थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट ने क्या किया है सोडियम क्लोराइड सिंपोटर सिस्टम को इनहिबिट कर दिया है. सो जो भी यहाँ पे सोडियम आएगा इट कैनॉट गेट रीअब्सॉर्ब एंड ये जो सोडियम है देन इट विल ट्रेवल टू द फर्दर रीजन्स ऑफ अवर नेफ्रॉन एंड अल्टीमेटली ये जो सोडियम है वो बॉडी से लॉस्ट हो जाएंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ये जो सोडियम होता है ऑलवेज सोडियम इज फॉलोड विथ वाटर. सो जैसे ही सोडियम हमारे बॉडी में से एलिमिनेट आउट होंगे साइमल्टेनियसली वाटर भी एलिमिनेट आउट होगा एंड दिस एक्सक्रीशन ऑफ अवर सोडियम along with the water, this effect is known as diuresis. एंड जो ये ड्रग डायूरेसिस इफेक्ट शो करते हैं they are known as diuretic agent. So diuretic agent is simply those group of drugs which is promoting the loss of sodium as well as water. Now let us revise this particular mechanism of action with the help of a flowchart. So as you know, thiazide, it is inhibiting our sodium chloride sympater system in the early part of our distal convoluted tubule. उसके वजह से it will promote the excretion of our sodium and along with the sodium there will be elimination of our water. So can I say कि जब भी ये सोडियम एंड वाटर बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट आउट होंगे रिलेटिवली जो बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है
वो कम हो जाएगा। उसके वजह से जो वीनस रिटर्न टू दी हार्ट है दैट विल गेट डिक्रीज। उसके वजह से जो प्रीलोड होगा वो कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। उसके वजह से देयर विल बी डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, and whenever there is a decrease in the cardiac output, there will be decrease in our systolic blood pressure. Now on the chronic therapy, there will be decrease in the sodium concentration in the vascular smooth muscle. उसके वजह से क्या होगा? There will be decrease in the peripheral vascular resistance, and once again we know कि जब भी peripheral vascular resistance कम होता है, it is also reducing our blood pressure. So this is the mechanism of action of our thiazide diuretic agent. Now ये जो diuretic agents होते हैं, बाकी के जो जितने भी क्लास है, we have covered those diuretic agent in detail on our YouTube channel. So अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है about the diuretic agent, I will provide you the link of that playlist in my description box below. So that's it for today's video lecture. So आज के इस वीडियो लेक्चर में we mainly understood the mechanism of action of our calcium channel blocker, as well as we understood about the mechanism of action of our diuretics agent. अगर आपने वीडियो लेक्चर यहाँ तक देखा है, please consider subscribing to my YouTube channel, press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video lecture. Till then, see ya, bye bye, have a good day.